अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। By Shri M. Anand Prakash, Joint Secretary PRI in the Ministry of External Affairs. I would also like to let you know that we have pressing engagements following this press briefing, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, we'll not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much.
Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला लिया गया है और इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल रोक दिया गया है। हेल्ड इन अबेयंस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे रोक दिया गया है। अब ऐसे में पारंपरिक रूप से जो कई मुद्दों पर अभी तक हम बोझ ढो रहे थे, उन सबको भारत सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक दिल्ली छोड़े। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कम से कम राजनीतिक और अगर आप कूटनीतिक रूप से आप देखें तो डिप्लोमेटिक तरीके से इतना बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे लग नहीं सकता है जैसा आज भारत ने फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पाकिस्तानियों को एक तो वीजा नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी दूतावास को भारत में बंद कर दिया जाएगा और इंडस वाटर ट्रीटी को भी पूरी तरह से फिलहाल रोक दिया जाएगा। यानी दाना पानी लेकर जो दूतावास पाकिस्तान का है वो अब वापस जा सकता है। सभी को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा और कड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी को और अटारी बॉर्डर चेक को पोस्ट को बंद कर दिया गया है। इन खबरों के मायने समझिए, एक के बाद एक, जिसे कहा जाता है ताबड़तोड़ कूटनीतिक रूप से कार्पेट बॉम्बिंग आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग का बंद करना, अटारी पोस्ट को बंद कर देना, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी फिलहाल रोक देना, हेल्ड इन अबेयंस उन्होंने कहा। और इसी के साथ साथ भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने के बाद अब सभी को यह बता देना कि आप भारत छोड़कर जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़े फैसले, ये कड़े फैसले और इससे करारा तमाचा पाकिस्तान पर कूटनीतिक रूप से लग नहीं सकता। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ना है। सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा और कड़ा फैसला, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को 48 घंटे का वक्त दिया गया है। 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। और मुझे लगता है कि अगर कूटनीतिक रूप से वैश्विक मंच पर आप देखिए तो यह सख्त फैसला एक सुदृढ़ अडिग भारत की पहचान बनेगा, जिसने अपने देश में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खिलाई है कूटनीतिक रूप से कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वो इंडस वाटर ट्रीटी जो बार बार जानते हुए कि किस तरह से पाकिस्तान आतंक के एपिसेंटर बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं, हम उस इंडस वाटर ट्रीटी को ढो रहे थे, लेकिन आखिरकार इस हमले के बाद सरकार ने बड़ा कड़ा फैसला लिया है। 4 बड़े फैसले। सबसे पहले भारतीय उच्चायोग जो भारत में है, पाकिस्तानी उच्चायोग, उसे बंद कर दिया गया है। दूसरा, 48 घंटे के अंदर राजनयिक छोड़े हिंदुस्तान। तीसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देना, फिलहाल हेल्ड इन अबेयंस यानी रोक देना। चौथा, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक 5वां फैसला भी है जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि पाकिस्तानियों को अब वीजा नहीं मिलेगा। आइए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं एमईए की ब्रीफिंग। Not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you. And as Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack.
the CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Not be in a position to take. और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, विक्रम मिस्री जो कि MEA की तरफ से विदेश सचिव ब्रीफिंग दे रहे थे, जो बड़े फैसले लिए गए हैं और इससे करारा जवाब नहीं हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल रोक देना, इसी के साथ 48 घंटे में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को, राजनयिक को कह देना कि आप यहां से जा सकते हैं, पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद कर देना, ये बड़े और कड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे सहयोगी, हिमांशु मिश्रा और श्वेता। जिस मतलब कूटनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के चेहरे पर लग नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं लग सकता था। और देखिए, जिन चीजों को लेकर अलीना सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, वो चीजें शायद सुनने में किसी आम व्यक्ति को वैसी न लग सके, लेकिन अगर सिंधु जल समझौता जो है उसको लेकर उसको अगर अबेयंस में रखा जाता है तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि भारत जो इतने दिनों से ऑनर करता रहा है उस ट्रीटी को, अगर उसके जल को लेकर उसका इस्तेमाल भारत की सरहद के इस ओर होता है तो पाकिस्तान को इसका सीधा और बहुत बड़ा प्रहार उस पर होगा। दूसरी तरफ अगर हम अटारी चेक पोस्ट को बंद देख लें, जिस अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए कम से कम एक सिरा उस संबंध का खुला रहता था, तो वो भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ेगा। देखिए, बाकी चीजों को तो लेकर आप भी अवेयर हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते जो पिछले कुछ समय से, जब से भारत ने ये तय किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक आतंक पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, वो सारी चीजें तो रहती ही हैं। लेकिन अगर 48 घंटे का समय दे दिया जाता है कि भाई भारत को आप छोड़कर यहाँ से निकल जाइए, या फिर आर्थिक रूप से उन्हें चाहे इंडस वाटर ट्रीटी का असर उनके ऊपर देखा जाए या फिर अटारी चेक पोस्ट के बंद होने का असर उन पर देखा जाए, तो ये सीधा सीधा उन पर एक ऐसा प्रहार है जिसकी अपेक्षा शायद पाकिस्तान ने नहीं की। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने वाकई उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि जो खबरें आ रही थी कि वो अपनी सरहदों को लेकर किस तरह से अपनी सेना को एक्टिव कर रहा है, वहां पर भी एक खलबलाहट एक मची हुई थी, लेकिन इस बार चोट सही जगह पर लगाई गई है। और पाकिस्तान को राजनयिक रूप से अलग थलग करना, डिप्लोमेटिक रूप से अलग थलग करना, मुझे लगता है कि अब हमारे देशवासी भी इस बात से कम खुश होंगे कि हम अपने मुल्क में जो देश लगातार हमारे देशवासियों को मारते हैं, हमारे सेना के लोगों को मारता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को मारता है, कश्मीर में काम करने वाले मजदूरों को मारता है, उस देश का उच्चायोग हमारे देश में रहे, उस देश के राजनयिक रहे, तो फिर किस बात की डिप्लोमेसी जब एक तरफ से वो छुरा घोंपता रहता है पीछे से पीठ पर। और ऐसे में ये बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त है, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ है और साथ ही अशोक भी हमारे साथ है। हिमांशु, CCS में बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं और इसके दूरगामी नतीजे होंगे। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि आपकी जो जमीन है वो आतंकवादियों को पनाह देती है और अब ये भारत को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनकी जो हाई कमीशन है यहाँ, उसको बंद कर दिया गया। भारत ने अपने हाई कमीशन को वापस बुलाने का फैसला लिया। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भारत के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा और 1 मई तक जो भी पाकिस्तानी यहाँ हैं उनको वापस जाना होगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत ने राजनयिक तौर पर जो है कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को दिया है और कहा है कि आतंकवाद के साथ समझौता नहीं हो सकता, आपके साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक आतंकवाद का आप जो है साथ देते रहेंगे या आपकी जमीन का उपयोग जो है भारत के खिलाफ आतंकवादियों के लिए होता रहेगा। ये भारत को कतई बर्दाश्त नहीं और ये जवाब आज भारत की तरफ से दिया गया है। इसके साथ साथ अंजना एक और चीज है, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और वो बताएंगे कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो क्या और क्यों उठाए हैं। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि सरकार पाकिस्तान के साथ
क्या किस तरीके से उन्होंने जो डिप्लोमेटिक स्टेप उठाए वो और सरकार की क्या जानकारी है, वो सारी ब्रीफिंग जो है मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से संक्षिप्त में अगर आप लोग बताते चले जाएं, क्योंकि इससे बड़ी खबर आज नहीं हो सकती है गौरव, ऐसी खबर जिससे पूरे देश में, क्योंकि हमने बालाकोट स्ट्राइक्स किए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, हमने सब किया, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी थी जो सीने को छलनी करती थी। अब ऐसे में इस तरह के फैसले लेना, अटारी वाघा बॉर्डर पोस्ट को लेकर लेना, पाक नागरिकों को आने की इजाजत नहीं देना, या फिर राजनयिक और जो 48 घंटे में वापस जाने के लिए टाइमलाइन दिया गया है, ये सब ऐसे फैसले हैं जो कूटनीतिक रूप से एक जबरदस्त तमाचा है। आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, भारत ने शुरुआती कड़े कदम उठाए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टि से जो पाकिस्तान को एक तरह से करारा उसको झटका लगेगा, वो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में, यानी उस पर अंकुश लगा देना या उसको अभी उस पर अल्प विराम लगा देना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने पूरी तरह इंडस वाटर ट्रीटी को बंद नहीं किया है, एब्रोगेट नहीं किया है, लेकिन अब भारत उस ट्रीटी के तहत 1960 से जो करार आ रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी मिलता है और सिंधु नदी के साथ साथ जो अपर राइपेरियन नदियां हैं 3, उनका पानी मिलता है, उस पर भारत ने एक तरह से अंकुश लगाया है। पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान के साथ मीटिंग, जो परमानेंट इंडस वाटर कमेटी की मीटिंग होती है, वो बैठकें नहीं होंगी। तो ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लिए और फिर पूरे जो अरब सागर तक जिन राज्यों को वहां लाभ होता है, उससे उनको एक झटका लगेगा कि अगर आतंक चला तो पाकिस्तान का पानी भारतीयों के खून से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह संकेत है। उनके डिफेंस अटैचे, एयर अटैचे, नेवल अटैचे को वापस भेजना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। 30 संख्या कर दी है 55 से, जहां 110 होनी चाहिए थी उच्चायोग की संख्या। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को डाउनग्रेड करने की। पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे और पाक नागरिकों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। मंजीत नेगी, जो देश इंतजार कर रहा था, गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ी है। मंजीत, कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे, कूटनीतिक रूप से बड़े फैसले लिए गए। देखिए, इस बात को, ये बात शाम को ही साफ हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना के कार्यक्रम में इस बात को साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ उस आतंकियों को दंडित किया जाएगा बल्कि उसके पीछे जो असली लोग हैं, यानी कि ISI और पाकिस्तानी सेना, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। ये एक आधिकारिक स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्री का, जो साफ तौर पर दिखाता था कि इस बार चौतरफा पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाएगी, डिप्लोमेटिक कार्रवाई की जाएगी और सैन्य कार्रवाई की तैयारी की तरफ भी भारत बढ़ रहा है। और क्योंकि पिछले 2 बार जो पाकिस्तान के खिलाफ POK में जो कार्रवाइयां की गई, उससे शायद पाकिस्तान को उतनी चोट नहीं पहुंची जो इस बार, जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत की है, जिसके लिए अभी शुरुआती तौर पर जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं, जिस तरह के उनके साथ संबंध खत्म किए गए हैं। लेकिन अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने जिस तरह से सेनाओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक लिखित स्टेटमेंट वायुसेना के कार्यक्रम में पढ़ा, वो साफ तौर पर दिखाता है, वो सरकार की मंशा को साफ करता है। और अभी आप देखिए कि कल भी इन चीज़ों को लेकर और डेवलपमेंट सामने आएंगे, जब सेना प्रमुख भी 15 कोर श्रीनगर पहुंचेंगे, वो सेना का वहां पर जायजा लेंगे और आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं की जो कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी से एक बार गीता मोहन के पास चलते हैं। गीता, उच्चायोग चलेगा, स्केल डाउन किया गया है, राजनयिक को 48 घंटे में खाली करने को भी बोला गया है। जो पूरी डिटेल्स है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाई कमीशन से 5 स्टाफ को हटाया गया है, क्या है एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट डिसीजन क्या है? देखिए अंजना, हाई कमीशन को बिल्कुल बंद करने का मतलब होता है कि आप कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉर्मली अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन डाउनग्रेड किया गया है। 110 से 55 हो गए थे जब हमने पिछले अटैक्स देखे, पुलवामा, उरी, जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अब 30 कर दिए गए हैं, जिसमें से सीनियर ऑफिशियल स्टाफ कोई भी पाकिस्तान हाई कमीशन में नहीं रहेगा। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लो है पाकिस्तान के लिए। वो कुछ भी कह सकते हैं। जनरल मुनीर, आसिम मुनीर का अगर आपने स्टेटमेंट और स्पीच सुना होगा, आपको पता है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, कश्मीर की बात की, कहा कश्मीर के मुद्दे से कभी नहीं हटेंगे। आज नजर आ रहा है कि उनका जो वो स्टेटमेंट था वो किस तरफ इशारा कर रहा था। पाकिस्तान को इस बार ये डिसीजन, जो जिस तरीके का आतंकवादी हमला उन्होंने किया है, वो बहुत भारी पड़ने वाला है। इंडस वाटर्स में अगर रिव्यू कर ले भारत, तो पाकिस्तान को पानी
बहुत बहुत पानी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और हाँ हाँ गीता, देखिए मतलब ये हमेशा था कि इंटरनेशनल ट्रीटी का हवाला देकर भारत हमेशा इस मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों की सोचकर, वहां के आम आवाम की सोचकर, क्योंकि उस देश में सेना का जो हरकतें हैं उसकी वजह से इस ट्रीटी को ढोता रहा। लेकिन आज देखिए परिस्थिति क्या हो गई है जिसकी वजह से भारत को ऐसा करना है। और एक कहावत कहते हैं कि दाना पानी बंद कर देना, ऐसी ही स्थिति अब पाकिस्तान की हो गई है। एक तो वैसे ही किल्लत में डूबा हुआ एक पूरा मुल्क, जो कि अपनी सेना की वजह से, उसकी सोच की वजह से, जिसने उसे आतंक का एपिसेंटर बना दिया है, वहां का उद्योग ही टेररिज्म बना दिया है, युवाओं के लिए वहां पर रिक्रूटमेंट ही इसी चीज के लिए होता है। ऐसे मुल्क में अब पानी की भी अगर किल्लत हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दाना पानी पर अबान पड़ेगी पाकिस्तान के। लेकिन हमारे साथ कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अशोक सच्चनहार जी जाऊंगी आपके पास। एक छोटा रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहती हूँ। आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर बता रहे थे बड़ा लोगों के सामने में कि कश्मीर इज अ जगुलर वेन। अब उन्हें समझ में आएगा कि जब जगुलर वेन काटा जाता है तो फिर किस तरह का दर्द होता है। बड़ा फैसला, डिप्लोमैटिकली आप इसे किस तरह से देखेंगे? जी बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें मैं यही कहूंगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है उसको रद्द नहीं किया गया है, परंतु उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, जब IWT वैसे ही काम कर रहा था, नॉर्मल काम कर रहा था, तब भी पाकिस्तान को बहुत दिक्कत थी। जो भारत से हमको पानी नहीं मिल रहा है, जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर किशन गंगा डैम बना रहे हैं, कुछ और डैम बना रहे हैं, और उनको अपने हिस्से में जो पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब जब ये स्थिति आएगी, जो हमने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, तो उनके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और ये केवल देखिए पीने का पानी भी नहीं होगा, ये उनकी खेतीबाड़ी के लिए पानी इस्तेमाल होता है, ये उनकी इंडस्ट्री के लिए पानी इस्तेमाल होता है। पूरे उनके जो केवल लोगों के लिए नहीं, परंतु उनकी जो आर्थिक स्थिति है वहां पर, उस सबके ऊपर बहुत ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। परंतु देखिए अंजना, मैं आपके देखने वालों के लिए एक चीज और बताऊंगा। ये सब तो है, IWT है, वहां से सभी को, ये स्टाफ को कम कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर को छोड़ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो कहा विक्रम मिस्री ने, वो आखिर में उन्होंने कहा, जो जिन्होंने इसको अंजाम दिया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और जो उनके पीछे हैं उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, सरकार अभी बताना नहीं चाहती है। ये तो हमें कुछ जरूरी था देशवासियों को बताना है, जो कौन से आप एक्शंस ले रहे हो, आप बिल्कुल डिस्कस करके नहीं, परंतु इसके बाद जो आने वाला है, जो कि सरकार अपने आप निर्णय लेगी, कहां पर स्ट्राइक करना है, क्या स्ट्राइक करना है, कितनी तेजी से स्ट्राइक करना है। क्योंकि हमने देखा है जो बालाकोट का असर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का असर हुआ, परंतु अब उसके बाद उससे और बड़ा हमें कुछ करना है, जिससे कि पाकिस्तान को डिटरेंस मिले। वो आगे ऐसी बात सोचने में भी वो सोच भी नहीं सके, एक्शन लेना तो और भी दूर की बात है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार हम अपने दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दें, उसके बाद अशोक मैं आपके पास आ रही हूं। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि शुरुआती जब जानकारी आई थी तो उसको लेकर जरा सा कंफ्यूजन था, लेकिन एक एक करके आपको बताते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारी घटेंगे, 48 घंटे में सभी पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। भारत में सभी जो अब आने वाले पाकिस्तान में वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चोट लगेगी सिंधु जल समझौता यानी इंडस वैली ट्रीट को हेल्ड इन अबेयंस, यानी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। और जितने पाक नागरिक हैं 48 घंटे के अंदर उन्हें वापस जाना होगा, उन्हें भारत छोड़ना होगा। कुछ बड़े और सख्त फैसले लिए गए हैं। अशोक, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन ये डिप्लोमैटिक स्ट्राइक पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि उसका क्या मतलब। अब इंडस वैली ट्रीटी के बाद तो उसको पानी की ऐसी किल्लत, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो कि वही समझ रहा होगा। बिल्कुल अंजना, एक मैसेज दे दिया है पूरी दुनिया में भारत ने पाकिस्तान के साथ ये निर्णय लेकर के कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का अड्डा, वहीं से
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत के अंदर ये घटना हुई है, जो आतंकी घटना हुई है, वो पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेवार है। एक मैसेज खड़ा दे दिया है। लेकिन अंजना इतना भर नहीं है, अभी आतंकियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी है जो जिन्होंने ये हमला किया था, लेकिन उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पूरे प्लानिंग में शामिल थे, उनके खिलाफ भी भारत आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये डिप्लोमेटिक जो फैसले लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, ये तो अपनी जगह है ही, एक मैसेज दिया। और पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान को लेकर के एक जो मैसेज दिया है, उसमें कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। बार बार अलग अलग मंचों पे भारत पाकिस्तान को लेकर ये आवाज़ उठाता रहा है कि आतंकवाद को हमेशा से एनकरेज करता है, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हमेशा से ये बात होती रही है सालों से। एक बार फिर भारत ने ये एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने जो ये वारदात को अंजाम दिया है आतंकियों ने, उसके पीछे भी पाकिस्तान है, ये निर्णय लेकर के। और आने वाले दिनों में जैसे पिछले जो स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई, जो पिछले दिनों सरकार ने निर्णय लिए थे आतंकियों के जो कैंप डिस्ट्रॉय किए थे, आने वाले दिनों में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन आतंकियों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया, और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देख